So students, the first session is modifying layout of a paragraph. Now, what does that mean? We know what paragraphs are, alright, and for modifying those in MS Word, we know how to write paragraphs in copies we can do, but how to we can say write paragraphs in MS Word, that is something that we need to understand. Alright, and that is taught to us in this session. Alright, so let us start. You have already learned the basics of word processing. Last year हमने word processing के basics देखे थे. Now consider a situation where you write a lengthy article which spans several pages. आप लोग एक situation में हो, just consider that you are in a situation where you are supposed to write a document which spans or which is more than 2 or 3 pages, we can say. It lasts around 4 to 5 pages for an example. So, and you need to make it easier for the readers to read it. एंड यू वॉन्ट, क्या बोला इन्होंने कि यू वॉन्ट दैट पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से डॉक्यूमेंट टू बी इजीली रीडेबल फॉर द रीडर्स. तो अब वो कैसे होगा, तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास एक बहुत लेंदी सा डॉक्यूमेंट है. अब उस लेंदी से डॉक्यूमेंट को आप लोग यूज़र रीडेबल, मतलब कि मोर यूज़र रीडेबल रहे या मोर यूज़र फ्रेंडली रहे, यूज़र्स काफ़ी अच्छे से आसानी से उसको पढ़ पाएँ, तो वो कैसे होगा, तो वो हमको यहाँ पर इन्होंने समझाया हुआ है. लेट अस नाउ कंसिडर दिस particular paragraph which is given to us. In this paragraph you can clearly see that there is a question which is what is culture and gender sensitization. This is a question that is written over here. This is a text, this is a document created in MS Word. Next line started just after that culture in simple terms refers to our values, the way we speak, behave, think, dress, religious beliefs, the music we like, our interactics and the food we eat. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है. But if I tell you that you have to read this paragraph, and this is not this much only, this paragraph generally lasts for 4 to 5 pages. जस्ट इमेजिन कि 4 से 5 पेज का डॉक्यूमेंट है और कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है. किस तरीके से, ये जो पैराग्राफ आपको दिया है ना, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब ना कोई पैराग्राफ है ना कोई गैप है, एवरीथिंग इज रिटन इन कंटिन्यू. सो दैट वुड नॉट बी दैट मच यूजर फ्रेंडली एज अ यूजर वांट्स इट टू बी. आर यू गेटिंग मी? तो वो वहां पर इतना यूजर फ्रेंडली नहीं होने वाला है यूजर्स के लिए रीड करना, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट को इस तरीके से लिखते हो. ऑलराइट, नाउ what they have done is they have converted the same paragraph into a user friendly paragraph, which is this one. Alright, so in this paragraph the below the bottom one, इसको एक बार देखो. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है. So first they have written the question what is culture and gender sensitization. After the question they have made a paragraph, and you can see a paragraph has been started from culture in simple terms, which is written on the top. And after at some point of time they have again created another paragraph. ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरा पैराग्राफ बनाया इन्होंने, ये वाला. So this is another paragraph. It got ended at some point and again they created a different paragraph. So this is that paragraph. So what they have done is they have changed this particular document to this form by writing it in the form of paragraphs. अगर मैं आप लोगों से बात करूं और मैं अगर एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी की अगर मैं बात करूं, सो आई विल से दैट दिस particular paragraph is more user readable. Why it is more user readable? Because it has been converted into a proper form. Means a question is given, some paragraphs are given, 2 or 3 paragraphs are given, so that converts the document to be more user readable as compared to this one. दिस इज नॉट दैट यूजर रीडेबल, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी चीजें एक साथ लिख कर दे दी है इन्होंने. जब सारी की सारी चीजें एक साथ सब लिख दिया, सो दिस इज नॉट दैट यूजर रीडेबल. सो फॉर दैट रीजंस कन्वर्जन ऑफ अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट
to a proper formatting using the paragraphs is very much essential. ऑलराइट, तो पैराग्राफ्स का होना, पैराग्राफ्स को बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है. आप लोग आपके इंग्लिश के चैप्टर्स देखते होंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई स्टोरी है सो देयर मे बी सम पैराग्राफ्स क्रिएटेड. क्यों बनाए जाते हैं? कि ताकि वो यूज़र रीडेबल हो. अगर सारी चीज़ एक के बाजू में एक पूरा लिख दिया होता विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू अ पैराग्राफ, विदाउट फॉर्मेटिंग इट, सो दैट वुड नॉट बी दैट यूज़र रीडेबल, और आप लोगों को उसको पढ़ने में उतना इंटरेस्ट भी नहीं आएगा. So for creating interest and making it more user readable, you can convert that document in the paragraphs form. All right, this is something that they have explained to us. Now, okay, let us now see what all extra things they have given to us. Okay, using paragraphs, you can break continuous text to one or more sentences. है ना, एक continuous text को हम एक या एक से ज़्यादा sentences में convert कर सकते हैं. This way, it is lot easier for the readers to understand and enjoy the content. इस तरीके से जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, it becomes more user readable, more easier for the users to read, and they can enjoy the document because it has been converted to a proper form that we want. In this exercise you will learn to work with paragraphs and layout. अब देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने हमको बताया है कि how you can create a paragraph. All right, so for creating a paragraph you have to go into some there are some options which are given to us, and using those options we can create a paragraph. So the paragraph option is given under the page layout tab. And where is this page layout tab? It is in the ribbon. So in the ribbon you have to find page layout tab. Under the page layout tab you will find पैराग्राफ ग्रुप, है ना, पैराग्राफ ग्रुप आपको मिलेगा. ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तो ये हमारा पैराग्राफ ग्रुप है. एंड दिस पैराग्राफ ग्रुप इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज फॉर क्रिएटिंग वेरियस पैराग्राफ्स इन अ डॉक्यूमेंट. सो कहाँ पर होता है ये वाला पेज पैराग्राफ ग्रुप का ऑप्शन? सो इट इज इन द रिबन, सॉरी, इट इज इन द रिबन. And in the ribbon it is under the page layout tab, and in the page layout tab you have to move to the paragraphs group, and in the paragraphs group you can use the various formatting options for creating the paragraph. मतलब पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए आप लोगों को जो ऑप्शंस है वो कहाँ पर मिलेंगे? तो पेज लेआउट टैब में पैराग्राफ ग्रुप्स के अंदर देखने को मिलेंगे. नाउ दिस पैराग्राफ ऑप्शंस has many different options along with creation of paragraphs. So you can see कि अलग अलग पैराग्राफ, जैसे मैं थोड़ा सा जूम इन करके बताता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो आपके पैराग्राफ्स के बाद 10 पॉइंट का गैप दिख रहा है. ये यहाँ पर लिखा है ना, ये पैराग्राफ्स, और फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है 10 पॉइंट. तो 10 पॉइंट का मतलब है कि एक पैराग्राफ के बाद दूसरा जो पैराग्राफ बनेगा उसके बीच में कितना गैप रहेगा. जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, जैसे कि ये देखो, ये यहाँ पर ये पैराग्राफ एंड हुआ है, यहाँ पर ये पैराग्राफ एंड हुआ है, उसके बाद ये नया पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है. तो ये जो नया पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है उसके बीच में जो ये गैप है, ये गैप उन्होंने कितना बोल दिया कि वो 10 पॉइंट का गैप है. जब उन्होंने बोल दिया कि ये 10 पॉइंट का गैप है, तो एवरीवेयर वेर एवर यू विल बी क्रिएटिंग द पैराग्राफ्स इट विल बी हैविंग अ गैप ऑफ 10 पॉइंट, स्पेसिंग ऑफ 10 पॉइंट विल बी देयर. तो इधर कितना स्पेस चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं. नाउ वन मोर थिंग, for going into the various options of paragraph you have to click on this button. ये जो बटन दिख रही है, आप लोग जैसे ही इस बटन पे क्लिक करोगे, देखो ऊपर बना के बताई हुई है, ऐसी कुछ बटन है ना, एरो बना हुआ है उस पर, ऐसी कुछ बटन है वो. यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन. ऑलराइट, once you click on this button you will see various options related to the paragraph. Alright, you will see a paragraph box that will appear on your screen. Let me check whether it is given on the next screen or not. No. So you will see a paragraph dialog box which will appear on your screen, and from there you can set various things, like you can set the alignment,
कहाँ चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, सेंटर चाहिए, जस्टिफाइड चाहिए. यू कैन सेट द अलाइनमेंट, यू कैन सेट द स्पेसिंग एज वेल. स्पेसिंग भी वहाँ से सेट की जा सकती है. और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि टैब्स की पोजीशन सेट की जा सकती है. ये क्या होता है इसको हम समझते हैं अभी. टैब्स की पोजीशन को सेट किया जा सकता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं. अलाइनमेंट और स्पेसिंग तो चलो दिस इज इजी. हाउ टू सेट द टैब्स पोजीशन, व्हाट इज दिस. सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये टैब्स पोजीशन होता क्या है और ये कैसे सेट किया जाता है. ओके, सो you might be aware that there is a key on the keyboard like this, tab. ऐसी एक की होती है कीबोर्ड पे. दिस की इज जस्ट अबव द कैप्स लॉक की. ऑलराइट, ये कैप्स लॉक की के जस्ट ऊपर होती है. ठीक है, व्हाट डज दिस टैब की डू. टैब की गिव्स सम स्पेसेस टू अ डॉक्यूमेंट. सो देर इज अ फिक्स्ड स्पेस, इट गिव्स 8 स्पेसेस टू अ डॉक्यूमेंट. मतलब आपको अगर कभी डॉक्यूमेंट में कुछ नंबर ऑफ स्पेसेस देने हैं तो 8 बार स्पेस बार दबा दबा के आप आगे जा रहे हो. उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, आप टैब बटन दबाकर आगे जा सकते हो. ठीक, ये तो हुआ क्लियर कि टैब क्या करता है. तो टैब 8 नंबर ऑफ स्पेसेस प्रोवाइड करता है. ये 8 नंबर ऑफ स्पेसेस प्रोवाइड करना बोल लो या बोल लो कि ये हाफ अ इंच आगे बढ़ता है. ठीक, ऐसा भी लिखा जाता है इसको. तो या तो 8 स्पेसेस या हाफ इंच, दोनों एक ही बराबर हैं. तो बाय डिफॉल्ट जब हम टैब प्रेस करते हैं तो वो 0.5 इंच आगे बढ़ता है. ठीक है, और स्पेस बार कैसा होता है, एक ही स्पेस आगे बढ़ता है. स्पेस बार अगर देखिए, जैसे कि कर्सर यहाँ पर है, मैंने स्पेस बार दबाया तो कर्सर यहाँ पर आएगा. बट अगर मैं टैब दबाऊंगा तो कर्सर यहां पर आ जाएगा. समझ रहे हो, मीन्स इट पुट्स सम नंबर ऑफ स्पेसेस, वो कुछ नंबर ऑफ स्पेसेस वहां पर पुट करता है और आगे बढ़ता है. तो यहां पर इन्होंने ये बोला है कि वी कैन, हम लोग चाहें तो ये जो टैब अभी 0.5 इंच आगे बढ़ रहा है ना, अभी कितना आगे बढ़ रहा है, डिफॉल्ट बढ़ रहा है. डिफॉल्ट कितना है उसका, 0.5 इंच. ये आप याद रखना, डिफॉल्ट टैब पोजीशन जो होती है वो 0.5 इंच की होती है. So right now the tab is moving at a spacing of 0.5 inch, but we can modify this 0.5 inch as per our convenience. तो ये भी पैराग्राफ में ही ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो आपके टैब्स जो होते हैं जो कि 0.5 इंच आगे बढ़ते हैं, आप उसको 0.5 इंच की बजाय 1 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच या 0.1 इंच या 0.2 इंच, जितना आप चाहते हो आप उतना उसको मूव करवा सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस. हाउ वी कैन डू दैट, तो वो कैसे होगा. तो ये एक विंडो हमको पैराग्राफ के अंदर मिलेगा, वहां पर आप लोगों को ये ऑप्शन प्रोवाइडेड है. आप देख सकते हो, यू विल सी डायलॉग बॉक्स ऑन योर स्क्रीन लाइक दिस वंस यू गो टू द टैब्स ऑप्शन. ओवर देयर यू कैन फाइंड राइट नाउ the default tab position is what. So the default tab position right now is 0.5 inch. अभी कितनी है, 0.5 इंच है. बट वी कैन चेंज दिस टू सम डिफरेंट वैल्यू. हम इसको किसी एक अलग वैल्यू पर भी चेंज कर सकते हैं. चलो, तो ये इन्होंने यहां पर बता दिया. अब कैसे करेंगे देखो, तो यहां पर अलाइनमेंट भी हम सेट कर सकते हैं कि भैया हम पहली बार टैब दबाएं तो हम लेफ्ट में रहें, दूसरी बार टैब दबाएं तो हम सेंटर में चले जाएं, तीसरी बार टैब दबाएं तो हम राइट साइड चले जाएं. डेसिमल वैल्यूज़ कुछ दी हैं तो वहां पर भी पहुंच जाएं, और कुछ डैश 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 लगाकर कुछ वैल्यूज़ डाली हैं, वहाँ पहुँचना है तो वहाँ पर भी पहुँच जाए. मतलब बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं कि टैब दबाते से आप कहीं पर भी आपके कर्सर को मूव करवा सकते हैं. सो दीज आर ऑल ऑप्शंस विच आर गिवन टू अस. Now, for understanding this in detail, they have provided us with this example. इसको थोड़ा सा समझते हैं. देखो, यहां पर राइट नाउ बिफोर स्टार्टिंग द डॉक्यूमेंट अवर कर्सर विल बी ओवर हियर. ऑलराइट, अब मैंने अगर टैब स्टॉप पोजीशन को, जैसे कि यहां पर मेरा कर्सर है और मैंने यहां पर कर्सर रख कर यहां पर, ठीक है, यहां पर मेरा कर्सर है और यहां पर कर्सर रख के मैं पैराग्राफ में गया, टैब्स में गया, और टैब्स में जाके मैंने यहां पर सिलेक्ट कर दिया सेंटर. ठीक है, तो क्या होगा, मेरा कर्सर यहां पे होगा और मैं टैब प्रेस करूंगा तो मैं कहां चले जाऊंगा, मैं सेंटर में चले जाऊंगा. यहां पे कर्सर रखा, मैं पैराग्राफ में गया और अब मैंने सिलेक्ट कर लिया राइट.
मतलब क्या होगा, अगर अब मैं यहाँ पर हूँ, जैसे मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से मैं टैब प्रेस करूँगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, तो मैं राइट में पहुँच जाऊँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर कोई डेसिमल वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रहूँ और मैं पैराग्राफ ऑप्शन में जाके टैब प्रेस करूँ, तो मैं कहाँ पे चले जाऊँ, डेसिमल में चले जाऊँ। तो यहाँ पर देखो ये डेसिमल वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा। यहाँ से आप देखो ये बार भी इन्होंने बनाकर बताया है, तो बार मतलब कि एक ये डैश 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 वाली लाइन, तो वो ये यहाँ पर दिख रही होगी, ये डैश 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 लाइन खींची हुई है ना, तो ये होता है बार। तो अगर आप यहाँ पर हो और यहाँ से आप टैब दबाओ तो आप कहाँ जाना चाहते हो, तो बार पे जाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप ये बार सिलेक्ट कर लो तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो इनका कहने का मतलब ये है, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये समझाना चाहते हैं कि जो टैब्स होते हैं उन टैब्स की जो स्पेसिंग होती है या जो पोजीशन होती है, वो पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो वो टैब्स की पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट में रख लो, राइट में चाहिए राइट में रख लो, सेंटर में चाहिए सेंटर में रख लो, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, डेसिमल और बार। तो आप जहां चाहो उनको प्लेस कर सकते हो, एंड दिस इज समथिंग दैट इज एक्सप्लेन टू अस ओवर हियर। एक चीज और समझने वाली है, ये यहां पर आप देख रहे होगे, इसको बोलते हैं रूलर। ये जो स्केल जैसा दिख रहा है ना, ये स्केल जैसा जो होता है इसको बोला जाता है रूलर। ठीक है, इस रूलर में एक खास चीज अभी हमको दिख रही है, सॉरी हाँ, इस रूलर में एक खास चीज हमको दिख रही है। जब हमारा कर्सर लेफ्ट पोजीशन पर है तो यहां पर आपको दिख रहा है एक साइन बना हुआ है। जब लेफ्ट टैब पोजीशन अप्लाई करते हैं तो ऐसा एक साइन आपको, सॉरी मैं फिर से बनाता हूं, ऐसा एक साइन आपको स्क्रीन पर रूलर पर देखने को मिलेगा। आपने जैसे यहां से टैब दबाया, आप सेंटर पे आ गए, तो सेंटर कैसे इंडिकेट किया जाता है, तो सेंटर ऐसे इंडिकेट किया जाता है कि ये एक सेंटर पोजीशन है। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटर को इंडिकेट किया जाता है। ये राइट कैसे इंडिकेट किया जाता है, तो राइट ऐसे इंडिकेट किया जाता है, लेफ्ट के जस्ट अपोजिट। तो ये इंडिकेशन काय का हुआ, अगर आपको रूलर पे ऐसा साइन दिखता है तो समझ जाओ कि यहाँ पर राइट स्टेप स्टॉप पोजीशन अप्लाई की गई है। ऐसा साइन दिखता है तो समझ जाओ कि यहाँ पर सेंटर टैब पोजीशन अप्लाई की गई है। ऐसा साइन दिखता है तो समझ जाओ कि यहाँ पर लेफ्ट डिफॉल्ट लेफ्ट टैब पोजीशन अप्लाई की गई है। ठीक है, और फिर बचे हुए जो होते हैं बार के लिए क्या होता है, तो बार के लिए ऐसा होता है, सिंपल एक लाइन। ठीक है, और डेसिमल के लिए भी वो सिंपल इस तरीके से कुछ डॉट टाइप का यूज करता है। तो ऐसे अलग अलग मार्कर्स हैं, ऐसे अलग अलग मार्किंग पॉइंट्स हैं जिसको देखकर हम समझ सकते हैं रूलर पे कि कौन सा लेफ्ट अलाइनमेंट है, कौन सा सेंटर अलाइनमेंट है, कौन सा राइट अलाइनमेंट है, और कौन सा डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें टैब स्टॉप पोजीशन से आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप जैसे ही इस तरीके का डॉक्यूमेंट बनाओगे ना, तो एक बार टैब दबा, पहले तो यहाँ रहोगे, एक बार टैब दबाओगे ऑटोमेटिक यहाँ आ जाओगे, फिर टैब दबाओगे यहाँ आ जाओगे, फिर टैब दबाओगे यहाँ, फिर आ जाओगे यहाँ। तो आप लोगों को बार बार स्पेस 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 दबा के एक के नीचे एक आ रहा है कि नहीं लिखा हुआ, ये पता करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली टैब दबाओगे तो यू विल बी ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन, आप ऑटोमेटिकली उस लाइन पे ही पहुंचते जाओगे। सो दिस इज समथिंग दैट टैब पोजीशन कैन हेल्प यू आउट विथ। तो आप इस तरीके से अगर कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो वहां पर ये टैब स्टॉप पोजीशन आपकी बहुत मदद करने वाला है। ऑलराइट, सो दिस वाज समथिंग अबाउट टैब्स। तो यहाँ पर और देखते हैं और क्या दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर अब कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, चलो एक्सरसाइज देखते हैं एक्सरसाइज में है क्या। एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन है ये हमारा, डैश कैन बी यूज टू ब्रेक कंटिन्यूअस टेक्स्ट टू वन और मोर। तो इसका आंसर आएगा पैराग्राफ, सीधी सी बात, अभी हमने समझा, इसका आंसर आएगा पैराग्राफ। सेकंड, पैराग्राफ ग्रुप इज अवेलेबल अंडर। अच्छा, पैराग्राफ ग्रुप कहां पर होता है, तो पैराग्राफ ग्रुप होता है पेज लेआउट के अंदर। तीसरा है डिफॉल्ट टैब स्टॉप पोजीशन इज। अब डिफॉल्ट टैब स्टॉप पोजीशन क्या होती है, तो हमने देखा था अभी 0.5 इंच, इस तरीके से लिखते हैं इसको। तो डिफॉल्ट टैब पोजीशन होगी 0.5 इंच। ओके, so this was something that is explained to us in this chapter. So if you have doubts anything regarding this session, so you can ask me right now.
कोई भी डाउट इस सेशन से रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी डाउट स्टूडेंट्स? क्योंकि ये बहुत बेसिक सा सेशन है, बस पैराग्राफ कैसे बनाते हैं वो बताया हुआ है, और टैब स्टॉप पोजीशन डिफ़ॉल्ट क्या होती है वो बताया हुआ है, और उसके बाद टैब्स कैसे अप्लाई होते हैं वो यहाँ पर बताया हुआ है। उससे ज़्यादा और कुछ भी इन्होंने हमको यहाँ पर समझाया नहीं है। ऑलराइट, तो आप लोगों को अगर कुछ डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास।